Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Welcome to new session of 4th semester. In this semester, we are going to learn about linear integrated circuits having a subject code 22423. Today, we are going to start about our chapter 1, that is Fundamentals of Operational Amplifier, and today's topic of discussion is op-amp, equivalent circuit, circuit symbol and their terminals. The course outcome for this course as use op-amp in linear integrated circuit. In this chapter, we are going to learn about how to use op-amp in a different linear integrated circuit. The learning outcomes of this course. After the completion of this course, students will be able to understand the basic concept of operational amplifier, draw the symbol of op-amp and explain its terminals, and you also able to draw an equivalent circuit of op-amp. So let's start with the op-amp. Before going for the linear integrated circuit, we must have to know about the IC 741, that is the op-amp IC. So let's start with the introduction of op-amp. Now, what is an op-amp? सभी को पता होना चाहिए कि op-amp क्या होता है. Op-amp, it is nothing but your operational amplifier. सभी लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा है, but how this amplifier is used for the different applications like the mathematical application and the another application, and how it operates, that is called as the operational amplifier. This operational amplifier having the low cost integrated circuit which consists of transistor, resistors and capacitor. This op-amp having the different resistors, capacitors and transistor. ये सब हम जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे एक एक एप्लीकेशन को, then you will be able to know how this op-amp will operate. Then is op-amp also able to amplify a signal due to an external power supply? This op-amp consists of external power supply which is used to amplify a signal. We can consider the different number of signal, that is the sinusoidal wave and another different signal which will use to amplify, and then we will perform the operation of that particular op-amp. The name derives from its use. अभी आप लोग बोलोगे कि इसको op-amp ही क्यों बोलते हैं, क्यों अपन इसको एम्पलीफायर भी बोल सकते, बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल. बट op-amp क्यों बोलते हैं, बिकॉज जैसे जैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन अ पर्टिकुलर सिग्नल, वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए आप लोग उस op-amp को यूज करते हो. तो op-amp इट इज नथिंग बट द used to perform the operations on a signal. जो सिग्नल आप एज ए इनपुट दोगे, जैसे जैसे इनपुट आप दे रहे हो उस हिसाब से आप लोगों को आउटपुट मिलने वाला है. तो दिस इज ऑल अबाउट द op-amp. op-amp it is nothing but your operational amplifier. Then what are the different applications of op-amp? अभी देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कौन से है op-amp के. तो op-amp it is also used as an amplifier. जैसे कि उसको op-amp ही बोलते हैं तो एम्पलीफायर में वो यूज ही होने वाला है. उसके बाद में डिफरेंट मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में भी वो यूज होता है, जस्ट लाइक एडर सब्ट्रैक्टर. मीन्स आप लोग आगे जाके जैसे जैसे हम आगे पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे, आगे के यूनिट्स में आप लोग उसको एडर और सब्ट्रैक्टर के फॉर्म में भी पढ़ने वाले हो. देन op-amp it is also used as an voltage follower, लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर. देखो कितने सारे एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म में आप लोगों को पढ़ने. इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, एनालॉग मल्टीप्लायर एंड डिवाइडर एंड सो ऑन. नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर ऑफ एम. यहाँ पे मैंने कुछ गिने चुने एप्लीकेशन ही डाले, लेकिन इसके अलावे भी हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करने वाले जो कि रियल टाइम एप्लीकेशन में भी यूज हो रहे, डिजिटल एनालॉग दोनों को आईसी में यूज करके भी आप लोग op-amp को पढ़ सकते हो. देन देखो, दिस इज अ सिंबल ऑफ op-amp. दिस इज अ सिंबल ऑफ
ऑप एम्प, देखो यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले कि ऑप एम्प कंसिस्ट ऑफ अ ट्रायंगुलर फॉर्म, क्या करता है, ट्रायंगुलर फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट, जिसको 2 इनपुट देंगे एंड वी विल गेट द सिंगल आउटपुट। हमेशा ध्यान में रखना है whenever we are going for the op amp, जब भी op amp की बात आ रही तो op amp में आप लोगों को क्या करना है कि 2 टर्मिनल एज ए इनपुट यूज करने हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और एक ही सिंगल आउटपुट आपको मिलने वाला है और आप लोग उसको 2 सप्लाई देने वाले हो, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। डायग्राम निकालते टाइम एक ध्यान में रखना है कि जब हम सोचते हैं, जैसे निगेटिवली अगर वर्ड आता है नॉन, नॉट या फिर अनदर कोई भी नन वगैरह, तो अपन कैसे निगेटिव फॉर्म में जाते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं या फिर स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल है तो इट बिकम्स पॉजिटिव एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है तो इट बिकम्स नेगेटिव, बट ऑप एम्प में ऐसे नहीं होता। ऑप एम्प में थोड़ा अलग फॉर्म में है और वो मतलब डिफरेंट फॉर्म में होने के बाद भी वो वाइस वर्सा होता है। जैसे कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर आप यूज करते हो तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इट इज नथिंग बट योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड द इन्वर्टिंग टर्मिनल इट इज नथिंग बट योर नेगेटिव टर्मिनल। You must have to understand and remember this thing that the inverting terminal it is a negative terminal of op amp and the non-inverting terminal it is the positive terminal of op amp. Is that clear to everyone? देखो उसके बाद में कि यहाँ पे देखो Vs that is the positive supply and the negative supply, जब जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जाओगे ये डायग्राम आप लोगों को सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। क्लियर? जहां जहां आप लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे ईच एंड एवरी एप्लीकेशन को, तो आप लोगों को ये सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा जाता है ड्रॉ द सिंबल ऑफ ऑप एम्प विथ इट्स टर्मिनल। यू हैव टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम while writing the answer. Clear? Then देखो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट दिया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट। अभी ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑप एम्प आप लोगों को बताया कि ऑप एम्प क्या होता है, ऑप एम्प के कितने टर्मिनल्स होते हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को हाउ टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब ये सर्किट कैसे जनरेट किया गया है और हाउ टू ड्रॉ इट, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मोस्टली आप लोग ऑप एम्प को जब यूज करते हो तो वी आर गोइंग टू यूज द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप एम्प, दैट इज द वन इज द आइडियल ऑप एम्प एंड द सेकंड वन इज द प्रैक्टिकल ऑप एम्प। देखो तो इक्विवेलेंट सर्किट किसका बनाया जाता है, तो मोस्टली आइडियल एज वेल एज द प्रैक्टिकल, बट अपन मोस्टली प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं हर एक एप्लीकेशंस को, इसीलिए अपन इसको इक्विवेलेंट सर्किट नॉन आइडियल फॉर्म में दैट इज इन द प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करेंगे। तो देखो दिस डायग्राम शोज एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑप एम्प। क्या शो कर रहा है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑप एम्प। सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी 2 इनपुट अगर यूज कर रहे हो तो यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दैट इनपुट, बराबर है, डिफरेंस बिटवीन दैट इनपुट, दैट्स व्हाई ऑलवेज ऑप एम्प इट इज नथिंग बट योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्या होता है, ऑप एम्प इट इज नथिंग बट योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को एक इनपुट एज वेल एज द अनदर वन इज द आउटपुट। तो देखो टर्मिनल्स में आप लोगों को 2 इनपुट देंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल हमेशा कौन सा टर्मिनल होता है, निगेटिव, एंड द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इट इज द ऑलवेज द पॉजिटिव। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस निकालते टाइम आप लोगों को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से ही इन्वर्टिंग टर्मिनल को माइनस करना है। कभी भी आप लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को माइनस नहीं करोगे। क्लियर? उसके बाद में देखो ये 2 टर्मिनल्स यहाँ पे दिया है, प्लस VCC एंड द माइनस VE। यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव सप्लाई देना है और यहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट करना है क्या, ग्राउंड। देन डिफरेंस निकालते टाइम आप लोगों को इसको इक्विवेलेंट सर्किट क्यों बोला जाता है, सबसे पहले कि इक्विवेलेंट सर्किट बोला जाता है क्योंकि ऑप एम्प इज अ वोल्टेज एम्पलीफायर, ऑप एम्प इज अ वोल्टेज amplifier which provides the gain,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप लोगों ने जैसे कि एईएल में पढ़ा है कि गेन, एम्पलीफायर का गेन कैसे निकालते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विद दिस वर्ड, दैट इज द गेन। तो आप लोग जब भी वोल्टेज एम्पलीफायर यूज करते हो तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द गेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप एम्प इज अपने आप ही वोल्टेज एम्पलीफायर है विच प्रोवाइड्स द गेन, दैट इज द एवी। क्या प्रोवाइड करता है? गेन प्रोवाइड करता है, दैट इज नथिंग बट द एवी। उसके बाद में इट एम्पलीफाइज द डिफरेंशियल सिग्नल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोग दो इनपुट दे रहे हो तो यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर डिफरेंस ऑफ दैट इनपुट सिग्नल, दैट्स व्हाई दिस ऑप एम्प इट इज नथिंग बट द, क्या बोला जाता है उसको? डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एंड दिस प्रोवाइड्स द गेन ऑफ दिस इनपुट सिग्नल, दैट इज द VD, that is the VD, which is nothing but the differential voltage। और हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे मैंने पहले एक बार भी बताई हूँ कि आप लोगों को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से नहीं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से ही इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या करना है? माइनस करना है while calculating the difference। क्लियर? उसके बाद में यहाँ पे दिया आउटपुट दिया हुआ है, और आउटपुट जब आप निकालते हो तो दैट सिग्नल कंसिस्ट हैविंग द गेन, दैट इज एडी इंटू वीडी, एडी इंटू वीडी, जहां की एडी क्या हो गया अपना? डिफरेंशियल गेन किसका? इनपुट सिग्नल का, और वीडी क्या हो गया? डिफरेंशियल वोल्टेज किसका? इनपुट सिग्नल का। तो ये जो इनपुट सिग्नल आपने प्रोवाइड किए हैं, तो उसी सिग्नल को आउटपुट साइड में आप लोगों को क्या करना है? गेन से मल्टीप्लाई करना है, विच इज नथिंग बट योर आउटपुट वोल्टेज। समझ में आया? विच इज नथिंग बट योर आउटपुट वोल्टेज। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे और ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट की क्या नेसेसिटी है। सबसे पहले कि इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम नहीं निकालते थे तो वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल वोल्टेज, अपने को पता रहता नहीं। देन हाउ कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब तक कि आउटपुट वोल्टेज नहीं निकालेंगे वी कैन नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द derivation for the output voltage of different applications of op amp। क्लियर? उसके बाद में देखो यहाँ पे आप लोगों ने सिग्नल दिया, सिग्नल का आप लोगों ने गेन विथ डिफरेंशियल वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज भी निकाला, तो इट एम्पलीफाइज द डिफरेंशियल सिग्नल फ्रॉम इनपुट साइड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने दो सिग्नल का डिफरेंस निकाला, विच इज नथिंग बट योर VIT। उसके बाद में हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड द लो आउटपुट रेजिस्टेंस, इट इज हैविंग अ हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड द लो आउटपुट रेजिस्टेंस। क्लियर? उसके साथ साथ इसको दो टर्मिनल्स भी होते हैं, वन इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द सेकेंड वन इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो इट इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट सर्किट। क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑप एम्प एंड व्हाई इक्विवेलेंट सर्किट इज नेसेसरी ऑफ ऑप एम्प। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एंड क्वेश्चन विल आस्क फॉर द टोटल 2 marks or 4 marks। Clear everyone? Then so this lecture summarizes with क्या क्या पढ़ा अपन ने? Understand the basic concept of operational amplifier, understand the basic concept of operational amplifier। उसके बाद में अपन ने how to draw the symbol of op amp and उसके टर्मिनल्स कौन से होते हैं? सिंबल अगर आप निकालते हो तो सिंबल हमेशा ट्रायंगुलर फॉर्म में रहेगा, which consist of the 2 input signal and the single output। उसके बाद में अपन ने इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे ड्रॉ करते हैं और वो क्यों यूज करते हैं, ये भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। सो दिस लेक्चर समराइजेस विद द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सिंबल ऑफ ऑप एम्प एंड द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑप एम्प। देखो, जैसे ही लेक्चर समराइजेस करते हैं अपन, उसके पहले एक सिंपल सा फंडा आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी मैंने ये पढ़ा तो मेरा एक पर्टिकुलर CO था। CO इट इज नथिंग बट योर कोर्स आउटकम, और कोर्स आउटकम के साथ साथ जब भी अपन
एखादे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो दैट सब्जेक्ट के और अपने ब्रांच के कुछ प्रोग्राम आउटकम्स होते हैं, मतलब प्रोग्राम आउटकम्स को कोर्स आउटकम के साथ कैसे मैप किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब भी मैं कोर्स आउटकम्स लूंगी तो देयर आर टोटल 7 पीओज। कितने पीओज है? टोटल 7 पीओज। और मैप करते टाइम आप लोगों के पास कितने लेवल्स है? 3 लेवल, हाई, लो एंड मीडियम। तो जब भी मैं हाई, लो एंड मीडियम को देखूंगी तो आप लोगों के जितने नंबर ऑफ डिफरेंट 7 पीओज है, all POs are related to experiments or branch knowledge और discipline knowledge और basic knowledge। उसके बाद में तुम लोग उसको प्रोजेक्ट के लिए कैसे एनालाइज करते हो, उसके बाद में तुम लोग उसको पढ़ते टाइम कुछ इथिकल वैल्यूज को मेंशन करते हो क्या, उसके बाद में आप लोग जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो या फिर ग्रुप परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसके बाद में आप लोगों ने जो पढ़ा उसको आप लोग लाइफ टाइम ध्यान में रख सकते हो क्या, ये सब चीजें दैट इज नथिंग बट द प्रोग्राम आउटकम। और जब भी प्रोग्राम आउटकम्स को अपन देखेंगे या फिर सीओ के साथ मैच करेंगे तो आप लोगों को 3 लेवल्स को कंसीडर करना है, 3, 2 and 1। That is nothing but your high, medium and low. Is that clear to everyone? From next lecture we will understand how to map the CO with the PO. So this is all about today's lecture. Thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture, we will study about IC 741 pin diagram with its function and the different op-amp parameters. Thank you so much.